From today, we are going to start electrostatic. If electrostatic is made of two words, we can see that electrostatic is made of two words, electro and static. Electro means something related to the charge. Electro means something related to the charge, and static means at rest. यानी कि electrostatic is going to the branch of the physics where we are going to deal about the charges at rest. Property of the charges are charges at rest. Electrostatic is the branch of the physics which deals with properties of charge at rest. Here is coming a new word, that is the charge, that we already know. Okay, we are going to tell you about charge. What is the charge? We can say that charge is something which can create its own electric field and magnetic field, and it can also experience the electric field and magnetic field of other charges. That means it can experience the electric forces and magnetic forces created by other charges. Okay, here it is written, charge is the property of a body or particle due to which it can create electric and magnetic effect. It can create electric and magnetic field in the surrounding region of itself, and it can experience electric and magnetic forces. Okay, the charge is something that is going to create a electric and magnetic field, and it will also experience the electric and magnetic field experienced by other charged particle. ठीक है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है दैट इज द कूलम. चार्ज का जो एसआई यूनिट है दैट इज द कूलम. सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू. ESU, that is the electrostatic unit. That is the electrostatic unit. In 1 coulomb, there is 3 multiplied by 10 raised to the power 9 ESU. Okay. Dimensional formula of the charge is IT or AT, and it is coming from I equal to Q by T. We know that electric current is one of the 7 fundamental units, and its dimension can be written as I, and times dimension can be written as T. That's why it is coming dimension of the charge as IT. In some books there has been written A for the current, so that's why we can also write AT or IT. Now we are going to talk about the different properties of the charges. Okay, first property of the charge is that charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. What does it mean? That charge is additive. That we can simply by the simple mathematics we can add up the charge. Suppose that we have a 2 coulomb charge, minus 3 coulomb charge, 5 coulomb charge, and again minus 1 coulomb charge. Then we can simply add up this and get our answer. That is 2 plus 5 7. 7 minus 4. That is a 3 coulomb charge. That can by simple algebra we can add up the charge. That time we can charge are the additive or charge are the scalar quantities. Okay. Second property of the charge is that charge are of 2 types. Charge are of 2 types. One we are calling as a positive charge, and other are we calling negative charge. What is mean by positive charge? For example, proton. Proton has a positive charge. Proton has a positive charge of plus 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb. Similarly, other particle is the alpha particle that we are calling the nucleus of the helium. That we are calling as the nucleus of the helium that has 2 multiplied by 1.6 multiplied by 10 raised to the power 19 coulomb charge. Okay. For negatively charged, best example is the electron. Electron has a charge of minus of 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb. So there are 2 types of the charges. One is the positive charge and other is the negative charge. Now we are going to talk about what does it mean to be a body to be a positive charge and to a body to be a negative charge. Here it is written in the point number 3 that if
any body is negatively charged, it means what? Negatively charged body means excess of the electron. Suppose we have a neutral body. If we are saying that we have a neutral body, that means number of electrons and number of proton in that particular body are the same. Number of electron and number of proton in that particular body is same. That means if you are talking about the neutral sodium atom, it has 11 electron and 11 proton. Okay, we are talking about the sodium. It has 11 electron and 11 proton, and electron has a negative charge and proton has a positive charge. So whole the atom is a neutral. But suppose we removed one electron from this particular body, then it will be sodium plus ion. Okay, then it is gaining, then here is changing, electron has become 10 and proton are 11. So this particular body is gaining 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज इट बॉडी इज गेनिंग बिकॉज इट हैज लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लूज कर दिया, दैट हैज बीन रिटन हियर to give a body to partially charged, that means deficiency of the electron हो रही है, deficiency of the electron हो रही है, loss of the electron हो रहा है. Then we are saying that body is partially charged, and if any body is gaining electron, that is there are going to be abundance of the electron or excess of the electron in any body, then we are saying that the body is negatively charged. Okay, किसी भी बॉडी में अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेस में डाल दे रहे हैं तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी. और किसी भी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहे हैं या रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जा रही है तो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज. ओके, दैट्स ओके. अब वन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर दो आइडेंटिकल बॉडी है और दो आइडेंटिकल बॉडी है, एक बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया और एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का आपके पास मास आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी की मास से ज्यादा आएगा. इस बात को समझ सकते हैं. मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी. क्यों? क्योंकि देखिए जब मास आपने निकाला नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और हम लोग सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो मास होता ही भैया. 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 kg. तो जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ रहा है तो इतना मास लेके आ रहा है नहीं. सपोज 5 इलेक्ट्रॉन बेसी आ गए किसी बॉडी पे तो 5 इलेक्ट्रॉन की मास के बराबर इस पे एक्सेस मास आ जाएगा. इसीलिए जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास जो होगा ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के मास से क्या होगा? बराबर होगा. लेकिन बॉडी क्या होनी चाहिए? कंडीशन आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए. दैट्स ओके. देखिए अगर प्रॉपर्टी हम बात करने जा रहे हैं, जो चार्ज है दो टाइप के हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, ठीक है. तो अगर दोनों चार्ज लाइक पॉइंट चार्ज है, कैसे लाइक पॉइंट चार्ज है? दैट मींस दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है, ठीक है. इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. पॉजिटिव है या नेगेटिव तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है. एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा. लेकिन यहीं पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उसमें क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन होगा. पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है. तो अनलाइक पॉइंट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का प्रॉपर्टी में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है. क्वांटाइजेशन मतलब होता है निर्धारित मात्रा में, इन द फिक्स्ड अमाउंट. कुछ भी हम लोग मान लीजिए दे रहे हैं that are in the fixed amount, then we will say that this particular thing is quantized. This particular thing is quantized. सपोज हम मार्कर लेने गए यही वाला, ठीक ना, तो हमको एक मार्कर मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, समझ रहे ना. हमेशा इंटीजर के रूप में मिलेगा, समझ रहे ना. ये क्या क्वांटाइज्ड है. जैसे हम लोग एनर्जी पढ़े, फोटॉन वाली एनर्जी hν, E बराबर hν, वो भी क्वांटाइज्ड है. ये hν है नहीं, एक फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन ऐसे मिल रहे हैं नहीं है. इंटीजर के रूप में जो एनर्जी का क्वांटा है, एनर्जी का हमेशा इंटीजर के रूप में, सेम यहाँ पर भी है. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो इंटीजर के रूप में होगा, है नहीं. जैसे कि हल्का सा अगर आपको एग्जांपल बताया जाए, मान लीजिए कैल्शियम +2 लिखते हैं, है नहीं, एल्युमिनियम +3 लिखते हैं, नहीं, सोडियम +1 लिखते हैं, क्लोरीन -1 लिखते हैं, समझ रहे होंगे बात को. ऑक्सीजन पे 2- लिखते हैं, नहीं, देख रहे हैं ना. या तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस बॉडी से, लूज कर रही है बॉडी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है. यानी कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान है, गेन है, टेक लेना देना है, हमेशा इंटीजर के रूप में होगा.
ठीक है, इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जा रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ द चार्ज है उसी को कहते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज। ये चीज को जरूर याद रखिएगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज है उसी को इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं, सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा और दूसरी बात समझिए इंडिपेंडेंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? इंडिपेंडेंट चार्ज है, उससे छोटे भी चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स बोला जा रहा है, लेकिन वे लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका स्पेन लाइफ टाइम बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में पाया जाने वाला चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है और सबसे छोटा चार्ज। इस चीज को जरूर याद रखेंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 2 का 3 का, तो n मान लिया तो q बराबर प्लस माइनस n e। क्या लिख सकते हैं? q बराबर प्लस माइनस n e। n क्या है? कोई इंटीजर संख्या होगी, और ये क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज। सबसे छोटा चार्ज यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। ठीक है, जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई मान बॉडी का चार्ज है, उसको आप स्पीड दे दिए, एक्सेलरेट कर दिए, रेस्ट में रखे तो उसका चार्ज बदल नहीं जाएगा। जितना चार्ज उस बॉडी पे है उतना ही चार्ज रहेगा, इसका यही मतलब है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगली जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जा रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कोई आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चार्ज को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज आर ट्रांसफरेबल, दैट मींस वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वी कांट क्रिएट अ न्यू चार्ज, वी कांट डिस्ट्रॉय ए नेट चार्ज। ठीक है, नेट न्यू चार्ज, हम लोग नया चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नया चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, बट चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया। देखेंगे, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का ऑलवेज कंजर्व है, दैट इज नेट चार्ज। यहाँ वर्ड देखिएगा, नेट लिखा गया। ठीक है, नेट चार्ज हम क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज को हम ना क्रिएट कर पा रहे होंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेट चार्ज को हम ना क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें कई पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इस पार्टिकल का नाम ये है, बी ए सी है, इसके बाद 2 कूलम चार्ज, इसके बाद 3 कूलम चार्ज, इसके बाद मान लीजिए माइनस 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब हमने किसी तरह से थोड़ा वो किया है, आपस में रगड़े उगड़े और फाइनली सब बॉडी के पास चार्ज कुछ इस तरह से आ चुका है। मान लीजिए बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इस वाली बी वाली बॉडी के पास मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज बचा। ठीक है, ये वाली बॉडी के पास -2 कूलम का चार्ज हो गया। तो जो सी वाली बॉडी है इस पे x चार्ज है, मान लीजिए वही हमसे पूछा जाए x चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? नेट चार्ज रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इनिशियली चार्ज है ना बॉडी पे, यहाँ पर हम लिख के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इनिशियली आप चार्ज जोड़िए बॉडी में, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 5 कूलम में से 1 कूलम चल गया है ना, नेगेटिव है तो 4 कूलम बच रहा है। इनिशियल चार्ज 4 कूलम है। अब फाइनली देख लीजिए चार्ज कितना है, इस पे x है, इस पे 1 कूलम है, इस पे -2 कूलम है, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? -1। इसको हटा देना, -1 + x, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनिशियल जो चार्ज है, क्योंकि हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव है, सीधा जोड़िए, है नहीं, 2 3 5 कूलम, 5 कूलम में से गया 4 कूलम, है नहीं, और इधर x और इधर 1 -2 -1 बचा। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, इस बार कितना आ गया? 5 कूलम। यानी कि जो सी वाली बॉडी होगी इसमें फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा? 5 कूलम आएगा। इसके कहने का यही मतलब है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम लोग नेट चार्ज को ना क्रिएट कर पा रहे होंगे ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे होंगे। समझ आए बात को ना? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर पा रहे हैं, इसमें आपस में रगड़े हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, तो रगड़ के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज दे दिए, लेकिन कोई नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ 7 नंबर आपको। अब देखिए आगे जब बात करने जा रहे हैं, अगला जो 3 पॉइंट लिखा गया है पूरा आपके 7 आने वाले चैप्टर का समरी है एक तरह से। समझ रहे हैं, पहला चैप्टर से लेकर 7वां चैप्टर तक बस इन्हीं तीनों पॉइंट का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट लिखा है आपके पास, चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है
ठीक है। तो क्या क्रिएट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज अगर रेस्ट पे रख दिया जैसे पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर रेस्ट पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करेगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ रहे हैं बात को ना, वही लिखा गया, चार्ज एट रेस्ट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल कोई रेस्ट पे जब पड़ा है रेस्ट पे, तो क्या करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, यानी इस पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, देखिएगा चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा तो आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाने वाला होगा। ठीक है। करंट करेंगे वायर में करंट बहेगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, है नहीं। एक करंट करेंगे वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ऐसा हम 10 में पढ़े रहे होंगे। ठीक है, तो वही सब बात यहाँ पर करेंगे। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विल क्रिएट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा, अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और एक्सपीरियंस भी क्या करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। समझ रहे होंगे इस बात को, एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स को भी ये एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अगला वाला पॉइंट देखिएगा, कह रहा कि चार्ज अगर मूविंग करेगा वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेट हो गया है चार्ज पार्टिकल, वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेट हो गया। जब एक्सेलरेट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, साथ ही वेव बन जाएगा। ठीक है, इसको अलग चैप्टर से पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMI। ठीक है, अरे सॉरी EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारा वेव पढ़ेंगे। चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, समझ रहे हैं, इंफ्रारेड है, विजुअल लाइट है, ठीक है, एक्स रे, गामा रे, ऐसे हमारे पास बहुत सारे यूवी रेडिएशन, समझ रहे हैं ना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है क्या कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी एक्सेलरेट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो वेव बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा चैप्टर आएगा इसके, ठीक है। तो इसी तीनों पॉइंट पे हमारा अगला 7 चैप्टर बेस्ड है। पहला 2 चैप्टर पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में बात करके, चार्ज को रेस्ट में रख के स्टोरी सुनेंगे। अगला 3 चैप्टर कम से कम, ठीक है, चार्ज को क्या कर रहे होंगे हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, तो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, है नहीं। और जो चार्ज को वेरिएबल वेलोसिटी हम लोग दे पा रहे होंगे तो उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे होंगे, EM वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए ओके बाय।